हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। गाइस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, दीज आर दी टॉप रैंक्स in ISI entrance examination, undergraduate entrance examination of ISI. And if you can see here, we have top 11 ranks in 50. We have 4 students in 100, like not in 100, in 10, and we have 18 students in top 100. And you can see AIR 1, AIR 2, AIR 4, AIR 8. These are the students who studied at Vedanta Olympiad School for a longer period of time. Okay, so इसके अलावा we also have multiple selections in CMI entrance examination as well. In total we had 12 selection in UG admission test in CMI, and out of which 7 students were qualified with scholarship. Okay, and if you want to also qualify CMI or ISI entrance examination with scholarship in CMI or in ISI, then I would highly recommend you should join the CMI's current crash course that we are running right now. Okay, if you go in the description of this particular video, then you will find the link of the ISI crash course. If you click on this link, then you can join the crash course which is going on right now. This is ISI CMI crash course to 2025 December. The crash course is going to start on the it is going to start on 3rd of December. जो हमारे course है, this is going to start on 3rd of December, and this course is taken by me. Okay, so बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ यहाँ पे, so I'm going to give you a proper introduction about me. My name is Sumit Rajput, and I've completed my bachelor's from Chennai Mathematical Institute in Mathematics and Computer Science. And other than that, I've qualified multiple examinations, Olympiads like pre-RMO, Regional Maths Olympiad, IOQM, ZIO. So these are my qualifications, and I have also taught multiple students for entrance examination of ISI and CMI, for IOQM, for RMO, for IAT, for AMC 8, for AMC 10. Okay, so guys, with that being said, we'll start with the session. And just किसी को भी ये course join करना, they can go in the description of this video and they can join this. And we are going to have around like this is the crash course of December crash course of ISI and CMI, and we are going to have around 60 classes in this course, and you are going to have total 120 comprehensive tests. जो इस कोर्स के अंदर, the course is going to finish around mid February, and उसके बाद you are going to also have the full length test also, UGA based test, UGB based test also with time boundation. So please make sure to join the course, and the course fee is very minimal. The course fee is around 5,000 or 6,000. You can go in the description of this video and you can definitely go and join the batch. Okay, and अगर आपको कोई doubt है, then you can personally reach out to me through my Telegram ID, that is Sumit Rajput, and there are 3 O's in this in this Telegram ID. Okay, so guys, with that being said, we'll start with this session. And आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल बहुत लोग समझते होंगे दैट ये क्या है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, बिना इसके भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. मुझे क्यों है इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है. ओके, सो आज के इस लेक्चर में मैं सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं कि आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्यों पढ़ना चाहिए, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, किस तरीके से आप उसको यूज करके अपनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, वील स्टार्ट विद दिस सेशन. एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का, वो होता है किसी ना किसी तरीके से रिमाइंडर फाइंड करना, यूनिट डिजिट फाइंड करना, लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करना, लास्ट 3 डिजिट्स फाइंड करना. ये सारी की सारी चीजें आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से बहुत ही इजीली निकाल पाओगे. Okay, so guys, with that being, we'll start with the session. And as all of you know, we have a very famous quote that mathematics is the queen of all sciences and number theory is the queen of mathematics. ओके, ऐसा क्यों बोलते हैं कि नंबर थ्योरी इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स? ऐसा इसलिए बिकॉज आप मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ लो, नंबर्स आपका पीछे कभी नहीं छोड़ने वाले हैं. इन पर्टिकुलरली नंबर थ्योरी, आप ज्योमेट्री करोगे तो आपके पास इक्वेशंस आने वाली हैं, आपके पास नंबर्स आने वाले हैं. आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो भी आपके पास नंबर्स आने वाली हैं, इक्वेशंस आने वाली हैं, डिविजिबिलिटी आप अप्लाई करने वाले हो. उसके अलावा कॉम्बी पढ़ोगे तो भी आपके पास नंबर्स आने वाले हैं. इसीलिए बोलते हैं दैट नंबर थ्योरी इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, बिकॉज विदाउट मैथमेटिक्स सारी की सारी साइंसेस अधूरी हैं. अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, देन यू विल नॉट नो दैट देयर आर 23 क्रोमोसोम्स, नॉट क्रोमोसोम्स, जो भी होता है वो आप समझ रहे होंगे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स. एंड केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड्स, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें. सो गाइज, विद दैट बीइंग सेड, विल स्टार्ट विद दिस सेशन. एंड आज का तो मेरा मेन टॉपिक है, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. आज के इस लेक्चर को अगर आप पूरा देख लेंगे, देन आई एम श्योर जो भी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, दैट यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. मैंने थोड़ा गलत बोला, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके अंदर कोई और मेथड बहुत डिफिकल्ट तरीके से, मतलब बहुत लेंथी सॉल्यूशन आएगा, आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंस के थ्रू सॉल्व कर पाओगे. Okay, so guys, with that being said, we'll start with this session. And
मैं आपको एक पहले छोटी सी स्टेटमेंट दिखाने वाला हूं. ओके, लेट एन बी a fixed positive integer. Two integers a and b are said to be congruent modulo n, symbolized by a congruent to b modulo n, if n divides the difference a minus b. That is provided that a minus b is equals to kn for some integer k. इसका मतलब ये है कि हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं that a is congruent to b mod n जब हम a माइनस b को n से डिवाइड कर पा रहे हो. मतलब कि if n is going to divide my difference a minus b, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं that a is going to be congruent to b modulo n. right, this is a very straightforward इक्वेशन. बट आप सोच रहे होंगे मैं इस इक्वेशन का किस तरीके से यूज करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम. राइट, दैट इज गोइंग टू बी योर मेन पेन पॉइंट कि मैं इस इक्वेशन का कैसे यूज करूं. राइट, अभी आपको यहाँ पे कोई इंट्यूशन नहीं आ रहा होगा, बट जैसे जैसे हम इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे आपको इंट्यूशन ऑलवेज मतलब ऑब्वियसली डेवलप करने वाला है. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, n इज गोइंग टू डिवाइड a माइनस b. अगर हम कॉन्ग्रुएंस को एक दूसरे तरीके से देखें, तो उसके लिए क्या करता हूं, पहले एक स्लाइड ऐड करता हूं. मैं ये बोलता हूं कि इफ a and b gives same remainder when divided by n, we write that a is going to be congruent to b mod n. हम क्या लिखने वाले हैं, that a is going to be congruent to b mod n. This is a better looking way of representing a is congruent to b mod n. right, अब हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं. अगर मैं किसी भी नंबर को n से डिवाइड करूंगा, अगर यहाँ पे मैं बोलूं मैं किसी भी अगर नंबर को, लेट्स से अगर मेरे पास नंबर a है, अगर मैं किसी भी नंबर को अगर n से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आने वाले हैं. या तो मेरा रिमाइंडर 0 होगा, या तो मेरा रिमाइंडर 1 होगा, या तो मेरा रिमाइंडर 2 होगा, या तो मेरा रिमाइंडर होने वाला है n-1. करेक्ट. तो अगर मैं किसी भी एक नंबर को अगर n से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल n रिमाइंडर्स आने वाले हैं. ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन रिमाइंडर्स को मैं एज अ ग्रुप या फिर एज अ सेट डिफाइन कर रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं जो कि सेम सेट से बिलोंग करते हैं. ओके, सेम सेट मतलब ऐसे नंबर्स जो कि सेम रिमाइंडर दे रहे हैं. ये ऐसे नंबर जो कि 0 रिमाइंडर देने वाले उनको एक सेट में रखूंगा, ऐसे नंबर जो 1 रिमाइंडर देने वाले उनको एक अलग सेट में रखूंगा, ऐसे नंबर जो 2 रिमाइंडर दे रहे हैं उनको एक अलग सेट में रखूंगा जब मैं n से डिवाइड कर रहा हूं. राइट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं अपने नंबर्स को कैटेगराइज कर पा रहा हूँ. एंड उन चीज के ऊपर अगर मैं किसी भी एक सेट से दो नंबर को पिक करता हूं, देन आई कैन से कि जो वो दोनों नंबर होने वाले हैं दैट a इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, बिकॉज मैं अपने नंबर्स को कैटेगराइज कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ n. अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, सो लेट्स से अगर हम n की वैल्यू को 3 लें तो मेरे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होने वाले हैं, 0, 1 और 2. ओके, अब अगर यहाँ पे हम लेट्स से मल्टीपल नंबर्स के बारे में बात कर लें, अगर मैं -2 से स्टार्ट करता हूं तो -2 जो है अगर उसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं, आई कैन राइट -2 एज -3 + 1. तो ये नंबर जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3, बट दिस नंबर इज द रिमाइंडर व्हेन इसको मैंने 3 से डिवाइड किया. तो ये जो होगा वो मेरे सेकंड कैटेगरी के अंदर जाएगा. तो -2 यहाँ पे आने वाला है. करेक्ट. तो इस तरीके से अपने ग्रुप को डिफाइन कर सकता हूँ. अगर मैं 5 को लूँ तो 5 कैन बी रिटन एज 3 + 2. तो इसका मतलब ये कि जब मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आने वाला है 2. तो मैं इसको यहाँ पे रखने वाला हूँ. तो इस तरीके से अगर मैं 15 की बात करूँ तो 15 जो है वो मेरे को 0 रिमाइंडर देने वाला है जब मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा. तो इस तरीके से अपने सारे नंबर को कैटेगराइज कर सकता हूँ. बट ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, तो जो मेरी मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो एक इंट्यूशन डेवलप करना है कि यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, इसका क्या मतलब है. ओके, आप यहाँ पे इसके 2-3 मतलब निकाल सकते हैं. जब मैं a माइनस b को n से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा. पहली चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज ये होगी कि जो a और b होंगे वो सेम रिमाइंडर दे रहे होंगे जब मैं उनको n से डिवाइड कर रहा हूँ. ये हो गया मेरा सेकंड तरीका इसको देखने का. ओके, एंड इसी चीज के ऊपर हम मल्टीपल चीजों को डेवलप कर सकते हैं. ओके, हम यहाँ पे कुछ बेसिक थ्योरम मतलब इसकी बेसिक डेफिनेशंस को डिराइव करेंगे एंड उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स भी ट्राई करने वाले हैं इसके ऊपर. ओके, जो मेन बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी आती हैं हम कुछ कुछ प्रूव करेंगे एंड बाकी मैं आपको होमवर्क की तरह ऐसा देने वाला हूँ. ओके, सो गाइस विल स्टार्ट विद दैट. तो सबसे पहले अगर मेरे पास है दैट अगर मेरा a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है एंड साथ ही में c इज कॉन्ग्रुएंट टू d mod n है, देन यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है. तो अगर मेरे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है लाइक a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n एंड c इज कॉन्ग्रुएंट टू d mod n, तो यहाँ पे मेरे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आती हैं. सबसे पहली होती है दैट a plus c is going to be congruent to b plus d
अंडर मॉड n। मतलब कि यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आप इसको प्रूव कर पाओगे, बट यहाँ पे मैं एक और लिख दूं, फिर हम साथ ही में दोनों को प्रूव कर लेंगे। ओके, एंड दूसरी क्या होने वाली है, दैट a माइनस c जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस d अंडर मॉड n। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पता है कि a और b सेम रिमाइंडर देते हैं जब मैं उनको n से डिवाइड करता हूं, और जो c और d है वो सेम रिमाइंडर देते हैं जब मैं उनको n से डिवाइड करता हूं। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, a और b होने वाले हैं, लेट्स से दे आर इक्वल्स टू k1 टाइम्स n प्लस r1, एंड जो b है दैट इज इक्वल्स टू k2 टाइम्स n प्लस r1। सिमिलरली जो मेरे c होने वाले, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू k3 टाइम्स n प्लस r2, एंड जो मेरे d होने वाला दैट इज इक्वल्स टू k4 टाइम्स n प्लस r2। इस तरीके से अब अगर यहाँ पे हम a और c को ऐड करें तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, a प्लस सी जो होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू k1 प्लस k3 टाइम्स n। ये जो पार्ट है दिस इज डिविजिबल बाय n, जो पार्ट n से डिविजिबल नहीं है वो क्या होने वाला है, r1 प्लस r2 वाला, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होने वाला है, r1 प्लस r2। अगर r1 प्लस r2 की वैल्यू n से बड़ी है तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा r1 प्लस r2 माइनस n, जो कि एक यूनिक नंबर होने वाला है, आप समझ जाओगे। जो b माइनस b प्लस d जो होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू k2 प्लस k4 टाइम्स n प्लस r1 प्लस r2। तो इस तरीके से जब जो a प्लस सी होने वाला है और जो b प्लस डी होने वाला है वो तो सेम रिमाइंडर देने वाले हैं जब मैं उनको n से डिवाइड करूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जो a प्लस सी होगा वो इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मॉड n। आप सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे दूसरा सिनेरियो भी प्रूव कर सकते हैं, जो a माइनस सी होने वाला है इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस डी अंडर मॉड n। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे अगर सेम चीज मुझे यहाँ पे दी हुई है दैट a is congruent to b under mod n and साथ ही में c is going to be congruent to d under mod n। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो a प्लस माइनस c है दैट इज गोइंग टू बी congruent to b प्लस माइनस d mod n, जो कि मैंने अभी तक देख लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो ac होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी congruent to bd mod n। ओके ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है प्रूव करने के लिए। हम वापस जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में यहाँ पे ए और बी को लिखा था और सी और डी को लिखा था, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देना है और बी और डी को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। आपको दिखेगा कि एक पार्ट जो होने वाला है वो एन से डिविजिबल होगा, एक दूसरा पार्ट होगा जो एन से डिविजिबल नहीं आ रहा होगा। तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि जो ए सी होने वाला है और जो बी डी होने वाले हैं वो दोनों सेम रिमाइंडर देने वाले हैं जब वो एन से डिवाइड होने वाले हैं तब। ओके, सो यहाँ पे लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। वेट, नॉट दिस, नॉट दिस। ओके, अब हम यहाँ पे अगर हम ऐसा दिया हुआ है दैट a इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, एंड साथ ही में जो b है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड n। तो हम इन दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं, जो a होने वाला है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड n। मुझे पहली वाली इक्वेशन से क्या पता चला, ये दोनों r1 रिमाइंडर देने वाले हैं, मुझे यहां से पता चला ये मेरे रिमाइंडर r2 देने वाले हैं। बट b अलग अलग रिमाइंडर कैसे दे सकता है, b तो सेम ही रिमाइंडर देने वाला होगा ना। सो दिस मींस जो दोनों रिमाइंडर होने वाले हैं ये सेम होने वाले हैं, मतलब कि जो a b होने वाला है सेम ग्रुप में बिलोंग करता है, बट b और c एक अलग ग्रुप तो नहीं बना सकते ना। तो इस वजह से जो तीनों एलिमेंट्स होने वाले हैं, जो मेरे तीनों एलिमेंट होने वाले हैं वो एक ही ग्रुप के अंदर बिलोंग करने वाले हैं, जो कि मैंने क्लासिफाई किए थे ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर्स। अगर यहाँ पे आपको पता हो तो व्हाट इज दिस, ओके। सो इस तरीके से मैंने क्लासिफाई किया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ हमने कौन सी यहाँ पे थ्योरम पढ़ी हुई है। सो लेट्स मूव अहेड। तो फॉर एनी आर्बिट्ररी इंटीजर्स a एंड b, तो जो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n लिखूंगा, तो इफ एंड ओनली इफ a एंड b लीव्स द सेम रिमाइंडर, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया था। ओके, एंड इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, यू नो। और यहाँ पे हम क्या मेन चीज हमारे लिए क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस प्रॉब्लम्स आर टिपिकली asked in the ISN CMI एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वही तो हमारा मेन प्रॉब्लम है आज के लेक्चर की, कि हम कांग्रेस पढ़ ही क्यों रहे हैं जब तक उसका एप्लीकेशन ही हम देख नहीं पाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम जिनके अंदर आपको यूनिट डिजिट्स, ऐसी प्रॉब्लम जिनके अंदर आपको यूनिट डिजिट्स या फिर रिमाइंडर या फिर लास्ट 2 डिजिट्स या फिर डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी जैसी चीजें पूछी होती हैं, इन ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का यूज कर सकते हो। बिकॉज हम पीछे जाए अपनी डेफिनेशंस के ऊपर, तो यहाँ पे जो ए और बी होने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ एन से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर की तो बातें कर रहे हैं,
तो अगर मैं ऐसे नंबर्स की बात करूं जिसमें डिविजिबिलिटी आती है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे रिमाइंडर भी फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डिविजिबिलिटी भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट भी निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लास्ट 2 डिजिट्स भी निकाल सकता हूँ। वो हम देखने वाले हैं कि हम यूनिट डिजिट कैसे निकालने वाले हैं, हम लास्ट 2 डिजिट्स किस तरीके से निकालने वाले हैं। सो नाउ गाइज आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर रीकैप ऑफ जो भी प्रॉपर्टीज हमने हाथ पे अभी तक देखी। तो जो ए मॉड ए होने वाला है, ए इज गोइंग टू कॉन्ग्रुएंट टू ए अंडर मॉड एन, बिकॉज अगर ए और ए सेम है तो वो एक ही ग्रुप के अंदर होने वाले हैं जब मैं एन से डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, देन बी इज ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। अगर हमने यहाँ पे आपको अगर याद हो ग्रुप वाली डेफिनेशन, तो अगर ए और बी सेम ग्रुप में तो बी और ए भी तो सेम ही ग्रुप में होने वाले हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। इफ ए एंड बी आर इन सेम ग्रुप देन एंड बी एंड सी आर इन सेम ग्रुप, देन ए और सी भी सेम ग्रुप के अंदर होने वाले हैं। इस तरीके से अगर आप कॉन्ग्रुएंस को समझोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है कॉन्ग्रुएंस। ओके, उसके बाद अगर हमें ये चीजें दी हो देन उनका सम भी मिलता है हमें, और उनका प्रोडक्ट भी मिलता है, एंड उसका डिफरेंस भी मिलता है जो कि हमने देख रखा है ऑलरेडी। ओके, अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है, देन ए प्लस सी इज गोइंग टू कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड एन होने वाला है, एंड ए सी इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड एन। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉमन नंबर को दोनों तरफ ऐड कर दे रहा हूँ, तो मेरे रिमाइंडर में फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा रिमाइंडर सेम चीज से इंक्रीज हो रहा होगा फिर डिक्रीज हो रहा होगा। Okay, if a is going to be congruent to b mod n, then a raised to the power of k is congruent to b raised to the power of k under mod n। अगर आपको पीछे प्रॉपर्टी याद हो मेरी, कहां गई, यहां पे आ गई, ये वाली। तो अगर यहां पे मैं c को a रख दूं एंड अगर मैं d को b रख दूं, तो ये मेरी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, दैट a स्क्वायर इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b स्क्वायर अंडर मॉड एन। तो इसी चीज को अगर मैं k टाइम्स रिपीट करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट a रेज टू द पावर ऑफ k इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू द पावर ऑफ k अंडर मॉड एन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप वीडियो को आराम से पॉज कर सकते हो, आप ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताई आप आराम से इनको लिख सकते हो। ओके, आप आराम से ब्रेक लो, आराम से इन सारी प्रॉपर्टीज को समझो कि ये बोल क्या रही है, उसके बाद यू कैन रीवॉच दिस वीडियो। हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल प्रॉब्लम, उसके बाद हम डिफिकल्ट साइड ऑफ प्रॉब्लम्स पे जाने वाले हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, लेट n बी माई नंबर दैट इज 1 रेज टू द पावर ऑफ 2017 प्लस 2 रेज टू द पावर ऑफ 2017 प्लस डॉट 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 अप टू 2016 रेज टू द पावर ऑफ 2017, देन n इज डिविजिबल बाय विच नंबर। देन यहाँ पे n कौन से नंबर से डिविजिबल होने वाला है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखोगे, दिस इज द एग्जैक्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो कि हम कॉन्ग्रुएंस से ट्राई करना चाहते हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, जो 1 ले लो और जो 2016 की बात करें, ओके 1 एंड 2016, सो 1 प्लस 2016 is going to be congruent to 0 अंडर मॉड ऑफ 2017। मतलब कि 2017 तो मुझे रिमाइंडर 0 ही देने वाला है ना जब मैं इसको 2017 से डिवाइड करूंगा। करेक्ट, बहुत सिंपल है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, लेट मी इरेज दिस। यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, जब मैं 2016 को 2017 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आता है, -1 आता है, बिकॉज -1 एंड 2016 क्या है, वो सेम रिमाइंडर देते हैं। अगर यहाँ पे कुछ है तो मैं वहां पे जाके उसको नेगेटिव हो जाता है, वो आप समझ जाओगे क्यों। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ कि अगर इसके ऊपर अगर मैं कोई पावर लेता हूँ तो वो मुझे रिमाइंडर क्या देने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 रेज टू दी 2016 रेज टू दी पावर ऑफ 2017 should also be congruent to -1 raised to the power of 2017 under mod 2017। यहाँ पे मैं कुछ भी पावर ले लूँ वो तो सेम ही मतलब रिजल्ट मेरा होल्ड करने वाला है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2016 रेज टू द पावर ऑफ 2017 प्लस 1 रेज टू द पावर ऑफ 2017 is going to be congruent to 0 अंडर मॉड ऑफ 2017। हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि अगर मैं इसको पिक करता हूं और इसको मैं यहां से इसको पिक करता हूं, देन इन दोनों का जो सम है दैट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 2017, राइट। काफी सिंपल चीज थी। मैंने पहले और आखिरी नंबर के बारे में तो यहाँ पे बता दिया, बाकी नंबर के बारे में कैसे बताऊंगा। करेक्ट, ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस चीज के लिए मैं सबसे पहले इसको इरेज करता हूं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैं 2017 को क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज लेट्स से सम के प्लस 2017 माइनस के। मैं 2017 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ एस के प्लस 2017 माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा, दैट के रेज टू द पावर
k is going to be congruent to minus of 2017 minus k under mod of 2017, राइट? बिकॉज ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 2017. तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा दैट k इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू माइनस ऑफ 2017 माइनस k अंडर मॉड ऑफ 2017. तो ये मुझे क्या देगा दैट k raised to the power of 2017 is going to be congruent to minus 2017 minus k whole raised to the power of 2017 अंडर मॉड ऑफ 2017. अब अगर यहाँ पे नोटिस करोगे, ये एक नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर एक ऑड पावर है, तो ये मुझे नेगेटिव नंबर ही मिलने वाला है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा दैट k raised to the power of 2017 is going to be congruent to minus of 2017 minus k raised to the power of 2017 अंडर मॉड ऑफ 2017. बहुत सिंपल, राइट? अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को दोनों तरफ ऐड कर दूंगा. दोनों तरफ ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा दैट k raised to the power of 2017 प्लस 2017 माइनस k raised to the power of 2017, जो ये नंबर है, दिस इज गोइंग टू गिव मी जीरो रिमाइंडर जब मैं उसको 2017 से डिवाइड करूंगा. मैंने यहाँ पे कहां से स्टार्ट किया, मैंने 2017 को ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखा फॉर एनी k की वैल्यू 1 से लेके 2016 तक कुछ भी हो सकती है. तो वहां पे क्या होने वाला है, ये तो नंबर 2017 है, 2017 जीरो रिमाइंडर देता है जब मैं उसको 2070 से डिवाइड करता हूं. फिर मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर जगह पे दोनों तरफ इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर बचा सिर्फ k और दूसरी तरफ आ गया नेगेटिव ऑफ 2017 माइनस k. एंड उसके बाद मैंने दोनों तरफ पावर ले ली 2017 एंड उसके बाद मैंने वापस से इस टर्म को दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो मुझे मिला ये पार्ट एंड दिस नंबर इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड ऑफ 2017. इसका मतलब ये कि k की वैल्यू के लिए, k की कोई भी वैल्यू 1 से लेके अगर मैं k की वैल्यू 1 से लेके 1008 तक रखूं तो मुझे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा. तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इन सारी चीजों को मैं सम कर दूं देन दिस विल गिव मी, जो ये पूरा सम होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 2017. मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया कि जो मेरा ऊपर वाला सम है दिस इज डिविजिबल बाय 2017. बट यहाँ पे मैं क्या 2 के बारे में कुछ क्लेम कर सकता हूँ कि इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट? कोई आइडिया इसके बारे में? बहुत सिंपल है. उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कोई भी एक इवन नंबर होता है वो तो 2 से डिविजिबल ही है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर्स हैं, अगर आप नोटिस करोगे, आई हैव 1008 इवन नंबर्स एंड साथ ही में 1008 ऑड नंबर्स. ओके, मेरे पास 108 ऑड नंबर्स है, 108 इवन नंबर्स है. उन 108 ऑड नंबर्स का जो सम होने वाला है वो तो इवन होने वाला है, बिकॉज मैं अगर कोई भी 2 ऑड नंबर लूं तो उनका सम क्या होता है, इवन होता है. तो अगर इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर है तो उनका सम भी इवन होने वाला है. तो जो ऊपर वाला नंबर है दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, कि जो ये एक्सप्रेशन है दिस इज डिविजिबल बाय 2 एंड 2017 बोथ. आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके बड़े आराम से इस सॉल्यूशन को मजा ले सकते हैं. आप आराम से पॉज करो, वापस रिवाइंड करो एंड आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैं कॉन्ग्रुएंस का यूज कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज का यूज किया है. सबसे पहले मुझे क्या पता है कि अगर मेरा नंबर n है, सो n इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 अंडर मॉड ऑफ n. फिर मैंने क्या बोला, जो n माइनस के होगा इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू माइनस के अंडर मॉड n. अब मैंने इनके ऊपर ले ली एक ऑड पावर, मैं लिख देता हूँ 2017 ही. यहाँ पे मुझे क्या बोला दैट n माइनस के रेज टू द पावर ऑफ 2017 is going to be congruent to minus k raised to the power of 2017, but minus k raised to the power of 2017 is just k raised to the power of 2017 under mod n. तो इसने मुझे क्या दिया दैट n minus k raised to the power of 2017 plus k raised to the power of 2017 is going to be congruent to 0 under mod n. एंड मैंने इसी चीज को सम कर दिया फॉर ऑल माई वैल्यूज ऑफ k फ्रॉम 1 रेंजिंग टू n by 2. उसके बाद मेरा आंसर आ गया, सिंपल. Okay, so guys, now we'll move on to our next problem. Find the remainder obtained upon dividing the sum by 12. जो ये मेरा सम है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू 100 फैक्टोरियल, मुझे सम निकालना है, मुझे रिमाइंडर निकालना है जब मैं इस सम को 12 से डिवाइड करूंगा. मुझे सम को 12 से डिवाइड करना है, उसके बाद मुझे अपना रिमाइंडर निकालना है. तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करो यहाँ पे, फिर उसके बाद यू कैन सॉल्व इट आउट एंड इफ यू डोंट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू कैन जस्ट वॉच द सॉल्यूशन आल्सो. ओके, सिंपल. मैं हर एक फैक्टोरियल को ओपन करके देखता हूं कि मुझे मिल क्या रहा है. 1 फैक्टोरियल इज सिंपली 1, इट इज गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर 1. ओके, सो
यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट 1 फैक्टोरियल इज जस्ट इक्वल्स टू 1 एंड इट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड ऑफ 12। अब मैं बात कर लेता हूँ 2 फैक्टोरियल के बारे में। 2 फैक्टोरियल इज जस्ट इक्वल्स टू 2 into 1, और आई कैन से 1 into 2 that is equals to congruent to under mod of 12। अब मैं 3 फैक्टोरियल की बात कर लेता हूँ। So 3 factorial is just equals to 1 into 2 into 3, that is going to be congruent to 6 under mod of 12। अब आया इंपॉर्टेंट पार्ट, 4 फैक्टोरियल। So what is 4 factorial? 1 into 2 into 3 into 4। बट अगर आप नोटिस करोगे दिस पार्ट इज डिविजिबल बाय 12, 3 into 4 इज डिविजिबल बाय 12। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा नंबर होने वाला है इट इज गोइंग टू गिव मी 0 रिमाइंडर अंडर मॉड 12। अब अगर मैं 4 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल की बात कर लूं, अगर अब मैं 4 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल की बात कर लूं, लेट्स से k इज ग्रेटर देन और लेट्स से ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जो मेरा k फैक्टोरियल होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 अप टू k। तो अगर आप नोटिस करोगे ये पार्ट तो मेरा 12 से डिविजिबल है ना, तो पूरा का ये जो नंबर हो गया दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 12, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 12। तो ये मुझे क्या देगा, 0 रिमाइंडर देगा जब मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ यहां तक का रिमाइंडर देखना था, ये सारे नंबर तो मुझे यहाँ पे 0 ही रिमाइंडर देने वाले हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस नंबर इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 0 अंडर मॉड ऑफ 12। मेरा पहला नंबर मुझे रिमाइंडर 1 दे रहा है, दूसरा नंबर मुझे रिमाइंडर 2 दे रहा है, तीसरा नंबर मुझे रिमाइंडर 3 दे रहा है, एंड बाकी के सारे नंबर मुझे रिमाइंडर 0 दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ दैट इट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 9 अंडर मॉड ऑफ 12। अगर आप इसको नॉर्मल तरीकों से, नॉर्मल डिविजिबिलिटी के फॉर्म से तो सॉल्व करने जाते हैं, देन आपको बहुत लंबा टाइम लगता है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का यूज करें जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो, यूनिट डिजिट निकालना हो, या फिर लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी हो। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, सो गाइज नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बहुत सिंपली हमने यहाँ पे देखा कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी k फैक्टोरियल ले रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी 4 फैक्टोरियल इनटू समथिंग, तो ये तो मुझे 0 ही दे रहा है ना रिमाइंडर, बाकी ये नंबर मेरा कुछ भी हो तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर 0। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द फॉलोइंग सम इज डिवाइडेड बाय 4। ये पूरा का पूरा जो सम है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा रिमाइंडर क्या आने वाला है। ओके, सो आप अगर यहाँ पे देख रहे होगे एक ऑड नंबर रेज टू द पावर ऑफ 5 है प्लस एक इवन नंबर रेज टू द पावर ऑफ 5 है। सो अगर यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक इवन नंबर रेज टू द पावर ऑफ 5 है, इट इज गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर 0 जब मैं उसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी मेरी इवन नंबर की, 5 टाइम्स। तो मैं तो इवन नंबर को बोल सकता हूँ दैट इट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट डिविजिबल बाय 32, बट 4 के बारे में बात थी तो ये मुझे रिमाइंडर 0 देने वाला है जब मैं उसको 4 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं ऑड नंबर के बारे में बात करूं, मतलब कि 2k प्लस 1 रेज टू द पावर ऑफ 5, ये क्या रिमाइंडर देगा। यहां पे मेरी k की वैल्यू 0 से लेके काफी दूर तक जा रही है, बट ये मुझे रिमाइंडर देने क्या वाला है, कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में, कोई आइडिया। सोचो आराम से पॉज करो, आराम से इस वीडियो को आराम से सोचो कि मुझे क्या रिमाइंडर देने वाला है। इसको मैं ओपन भी कर सकता हूं, राइट। अगर इसको ओपन कर दूंगा देन ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मुझे क्या देने वाला है, n चूज 0। हमने सब कुछ पढ़ रखा है, याद हो तो, जब हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था, सॉरी जब हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी उस टाइम पे हमने पढ़ा था x प्लस वाई रेज टू द पावर ऑफ n को किस तरीके से ओपन करते हैं। तो n चूज 0, 2k रेज टू द पावर ऑफ 5, n चूज 1, 2k रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 1 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस डॉट डॉट अप टू 5 चूज 4, 2k रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 5 चूज 5, 1 रेज टू द पावर ऑफ 5, इस तरीके से। तो अगर आप नोटिस करोगे दिस इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, बट दिस नंबर इज इट डिविजिबल बाय 4, इज इट। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा दैट इट इज गोइंग टू गिव मी 0, सेकंड नंबर इज गोइंग टू गिव मी 0, थर्ड नंबर इज गोइंग टू गिव मी 0, फोर्थ नंबर इज गोइंग टू गिव मी 0, बट व्हाट अबाउट दिस नंबर 5 चूज 4 क्या होता है, 5 चूज 4 इज जस्ट 5, 5 चूज 4 क्या, इट इज जस्ट 5। तो 5 इंटू 2k, तो ये नंबर क्या हो गया 5 इंटू 2k, तो ये नंबर आ गया मेरा 10k प्लस 1। तो ये मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, इतना पार्ट ने मुझे रिमाइंडर 0 दे दिया, बाकी नंबर मुझे 10k प्लस 1 रिमाइंडर दे दिया। तो मैं बोल सकता हूँ एट द एंड मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 10k प्लस 1 व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 4।
व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। सिंपल, बहुत सिंपल, अभी तक मैंने कुछ यूज नहीं किया, सिंपल कॉन्ग्रुएंस यूज किया। ये नंबर मुझे रिमाइंडर 0 देगा, ये नंबर मुझे रिमाइंडर 0 देगा, बाकी आगे वाले सारे नंबर देंगे इस नंबर से पहले वाले। तो ये नंबर मुझे रिमाइंडर देगा 10 के, बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, वो 2 से है इतना तो मुझे पता है, 4 से है वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ के ऊपर। ओके, सो इतना मैं बोल सकता हूँ दैट 10 के प्लस 1 मेरा फाइनल रिमाइंडर बचा है यहाँ पे। अब क्या, अगर मैं इस नंबर को देखूं, अब अगर इसमें नंबर को देखूं, मैं क्या बोल सकता हूं दैट इट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू मेरे सारे इवन नंबर्स, जीरो रिमाइंडर देने वाले, तो मुझे उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 रेज टू द पावर ऑफ 5, एंड जो मेरा k है, k इज गोइंग फ्रॉम 0, k 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 49 तक, 49 या 49 तक, करेक्ट। एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 10k प्लस 1, मुझे पता है ये नंबर मेरा रिमाइंडर ये देने वाला है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 10k प्लस 1, और मेरे k की वैल्यू कहां से, मेरी वैल्यू k की वैल्यू 0 से लेके 49 तक जा रही है, k की वैल्यू 49, 0 से लेके 49 तक जा रही है। व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, मैं लास्ट में लिख दूंगा वो, पर इसके आगे कैसे, अब जो मेरा समीशन है वो दो पार्ट के ऊपर डिवाइडेड है, तो आई कैन राइट दिस एज समीशन ऑफ 10k, k की वैल्यू मेरी 0 से लेके 49 तक जा रही है, प्लस समीशन ऑफ 1, k की वैल्यू मेरी 0 से लेके 49 तक जा रही है, अंडर मॉड ऑफ 4। इस तरीके से जो मेरा पहला वाला नंबर है, जब मैं उसको 49 टाइम्स ऐड करूंगा, मतलब जब k की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो ये मुझे सम क्या देने वाला है, इट इज गोइंग टू बी, मैं 10 बाहर निकाल सकता हूं, अंदर बचेगा 49 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ओके, इस तरीके से मेरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। एंड मुझे सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे रिमाइंडर क्या देने वाला है, ये मुझे जस्ट रिमाइंडर देगा, आई कैन से जस्ट 49, सॉरी 50 रिमाइंडर देने वाला है, ये मुझे रिमाइंडर कितने देने वाला है, 50, बिकॉज यहाँ पे मैं 1 को टोटल 50 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरा आंसर आया। ओके, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज को पढ़ जाऊँ एक बार, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी ऐड अ स्लाइड हियर। तो मेरा लास्ट में पार्ट कितना है, दैट वाज समेशन ऑफ 10k प्लस समेशन ऑफ 1, k की वैल्यू कहाँ से, 0 से लेके 49 तक, k की वैल्यू 0 से लेके 49 तक, दिस गेम मी 10, मैंने कॉमन बाहर लिया, अंदर क्या बचने वाला है 49 इंटू 50 बाय 2, और यहाँ पे सम कितना आने वाला है, इट इज जस्ट गोइंग टू बी इक्वल्स टू 50 अंडर मॉड 4। ये टर्म मेरी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई, मैं इसका रिमाइंडर बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। ओके, मैं इसको इससे कैंसिल आउट करूंगा, मुझे 25 देगा। एंड अगर आप नोटिस करोगे ये एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। लेट मी चेक कि मुझे आपसे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है। तो ये वाला जो पार्ट होने वाला है, दिस पार्ट इज गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर हाउ मच, ये पार्ट 4 से डिविजिबल नहीं है बट 2 से डिविजिबल है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से मुझे रिमाइंडर 2 मिलने वाला है जब मैं इस पार्ट को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो सेकंड वाला पार्ट 50 है, एंड 50 ऑल्सो गिव्स मी रिमाइंडर 2 जब मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 2 + 2 रिमाइंडर मिला अंडर मॉड 4, एंड 4 इज ऑल्सो जस्ट डिविजिबल बाय 4, सो ये मुझे क्या रिमाइंडर देगा, 0 अंडर मॉड 4। तो इसीलिए जो ये पूरी प्रॉब्लम थी इतनी बड़ी वाली, दिस प्रॉब्लम जस्ट बॉयल डाउन टू जो पूरा नंबर होने वाला, दिस नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या कि मेरा जो रिमाइंडर आने वाला है दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 0, दैट्स ऑल। इतने सिंपल तरीके से, मतलब सिंपल तरीके से तो नहीं, यहाँ पे मैंने काफी कैलकुलेशंस की थी, तो इस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, एंड गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड दैट इज find the smallest positive integer n such that n is between these two number 1000 and 1100 and 1111 raised to the power of n plus 1222 raised to the power of n is divisible by 10। तो हमने यहाँ पे, मैं बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखने वाला हूँ। raised to the power of n 1222 raised to the power of n 1333 raised to the power of n plus 1444 raised to the power of n is divisible by 10। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मुझे कितना रिमाइंडर दे रहे होंगे, 0 रिमाइंडर दे रहे होंगे जब मैं उसको 10 से डिवाइड करता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हर एक नंबर के बारे में इंडिविजुअली पता करता हूँ कि वो कितना रिमाइंडर देते हैं मुझे। हर एक नंबर के बारे में इंडिविजुअली पता करता हूँ कि मुझे कितना रिमाइंडर देते हैं जब मैं उनको 10 से डिवाइड करता हूँ। तो अगर मैं 1 1 1 1 की बात करूं, तो ये मुझे सिर्फ रिमाइंडर 1 देते हैं जब मैं उसको 10 से डिवाइड करता हूं। ओके,
एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे जो रिमाइंडर मिलता है दैट इज माई यूनिट डिजिट। ओके, अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास सिर्फ लास्ट वाली डिजिट ही तो बचती है, एंड दैट इज माय यूनिट डिजिट। तो अगर आपको कभी यूनिट डिजिट फाइंड करनी हो तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन योर नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, दैट्स ऑल। ओके, आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला दैट 1111 इज जस्ट 1 more 10 और 1222 इज जस्ट 2 more 10। तो इस तरीके से बाकी दो रिजल्ट भी होने वाले हैं, मैं लिख देता हूं दोनों जल्दी से। 10 last 1444 is also going to be congruent to 4 under mod 10। ओके, ये मेरे चार एक्सप्रेशन होने वाले हैं। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा दैट 1111 रेज टू द पावर ऑफ n इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 रेज टू द पावर ऑफ n अंडर mod 10। यहाँ से भी एक्जैक्टली सेम थिंग 1222 रेज टू द पावर ऑफ n इज गोइंग टू बी 2 रेज टू द पावर ऑफ n अंडर mod 10। 1333 रेज टू द पावर ऑफ n इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 3 रेज टू द पावर ऑफ n mod 10। And lastly 1444 raised to the power of n is going to be congruent to 4 raised to the power of n under mod 10। तो जो मेरी इक्वेशन थी इसको मैंने सिंप्लीफाई आउट करके क्या लिख दिया कि जो ये जो चारों एक्सप्रेशन होने वाले इनका जो सम होने वाला है दैट लिख देता हूं मैं अभी। तो जो भी मेरा नंबर n था, नाउ इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 raised to the power of n plus 2 raised to the power of n plus 3 raised to the power of n plus 4 raised to the power of n अंडर mod 10। अब यहां पे आप किस तरीके से n की वैल्यू निकालने वाले हो जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती हो, राइट? हमें पता है कि 1 + 2 + 3 + 4 जो है वो तो मुझे रिमाइंडर 0 ही देता है जब मैं 10 से उसको डिवाइड करता हूं। कैन वी यूज दैट समहाउ? So guys, you can just think about this. You can just pause the video here and you can think about the solution for this part. Okay. ओके, सो गाइज देन विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या पता चला है दैट 1 रेज टू द पावर ऑफ n plus 2 रेज टू द पावर ऑफ n plus 3 रेज टू द पावर ऑफ n plus 4 रेज टू द पावर ऑफ n क्या है, क्या रिमाइंडर देता है हमें वही चेक करना है। तो जब मैं n की वैल्यू को 1 डालता हूं, n की वैल्यू को 0 डालता हूं, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू 1 है तो मेरा सम क्या होने वाला है 1 + 2 + 3 + 4 एंड दैट इज जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू 0 अंडर mod ऑफ 10। एंड अगर n की वैल्यू 2 डालूंगा तो उस केस में क्या मिलेगा 1 + 4 + 9 + 16 and that is congruent to how much 5 25 30 that is 0 mod 10। एंड जब n की वैल्यू को 3 डालता हूं तब देखता हूं क्या होता है 1 + 8 + 27 + 64। सो ये दोनों सम करेंगे अप टू 72, ये करने वाले हैं अप टू 28। तो सम जो होने वाला है दैट इज एंड में 0 आने वाला है, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव मी 0 अंडर mod 10। अब n की वैल्यू जब 4 है तब देखते हैं क्या होता है 1 + 16 + 81 + 4 रेज टू द पावर ऑफ 4 इज 16 स्क्वायर 256। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं नोटिस करूँ ये मुझे 17 देने वाले हैं, ये मुझे देने वाले हैं 7 3 या बट अगर आप इन दोनों नंबर को देखोगे मुझे रिमाइंडर 4 देने वाले हैं, ये मुझे रिमाइंडर 4 देने वाले हैं जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा। तो आप सिमिलरली यहाँ पे नोटिस करोगे कि जब मेरी n की वैल्यू रिमाइंडर 1 2 3 दे रही होगी, मतलब जब मेरा नंबर 1 रेज टू द पावर ऑफ n + 2 रेज टू द पावर ऑफ n + 3 रेज टू द पावर ऑफ n + 4 रेज टू द पावर ऑफ n, ये 0 mod n 0 mod 10 तब होने वाला है जब n की वैल्यू 4 के फॉर्म की नहीं है। n की वैल्यू 4 के फॉर्म की नहीं है। ओके, जब n की वैल्यू 4 के फॉर्म की नहीं है तब यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं n की स्मॉलेस्ट वैल्यू देखूं जो कि 1100 से छोटी हो बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 हो, तो वहां पे मुझे क्या मिलने वाला है n इज जस्ट इक्वल टू 1001। दैट्स ऑल। ओके, सो गाइस इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हो विद कॉन्ग्रुएंस एंड बाकी आप हिटल ट्रायल तरीके से आप इसका बाकी का पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो गाइस वी आर हियर विद वन मोर वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, मतलब कि तो गाइस हम यहाँ पे एक बहुत प्यारा प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि हो सकता है कि आप किसी और मेथड से सॉल्व कर लो, बट यहाँ पे हम एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं यूजिंग कॉन्ग्रुएंस। मतलब कि
आपको ऐसा लगेगा कि जो ये प्रॉब्लम है दिस इज नॉट सॉल्वेबल बाय कॉन्ग्रुएंस, दिस इज अ टिपिकल डायफंटाइन इक्वेशन प्रॉब्लम, राइट, दिस इज अ टिपिकल डायफंटाइन इक्वेशन प्रॉब्लम। बट आज हम इसका एक सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि होने वाला है यूजिंग कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो लेट्स रीड आउट द प्रॉब्लम। फाइंड ऑल द प्राइम्स p एंड q सच दैट p प्लस q इज इक्वल्स टू p माइनस q होल क्यूब। तो अगर एक नंबर मेरे दूसरे नंबर की इक्वल है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि जो मेरा पहला नंबर है वो मेरे दूसरे नंबर को डिवाइड करने वाला है। सिंपल सिंपल, मतलब दोनों नंबर सेम है तो मैं तो अपने आप को डिवाइड ही करूंगा ना, मतलब अगर एक नंबर n है वो तो अपने आप को हमेशा डिवाइड ही करेगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, जो p प्लस क्यू होने वाला है दैट इज गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर 0। नॉट दिस, जो मेरा p माइनस क्यू होने वाला है, p माइनस क्यू होल क्यूब, इट इज गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर 0 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। बहुत सिंपल। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपना रिमाइंडर निकालूं जब मैं p माइनस क्यू को p प्लस क्यू से डिवाइड करता हूं। वो मेरा रिमाइंडर क्या आने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद लेट्स से अगर मेरा रिमाइंडर यहां से क्या आया अंडर मॉड p प्लस क्यू, देन मैं उसके बाद इसका क्यूब करूंगा, इसका मैं करने वाला हूं क्यूब, रिमाइंडर का भी होगा क्यूब अंडर मॉड p प्लस क्यू, करेक्ट। तो उसके बाद मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकता हूं यहाँ पे, राइट। तो दैट इज माय मेन मोटिव। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं रिमाइंडर निकालने वाला हूं p माइनस क्यू का जब मैं उसको p प्लस क्यू से डिवाइड करता हूं। ओके, जब मैं उसको p प्लस क्यू से डिवाइड करता हूं तो अगर मेरे पास मतलब p प्लस क्यू होने वाला है दैट इज जस्ट गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर 0 जब मैं उसको p प्लस क्यू से डिवाइड कर रहा हूं, करेक्ट। अब अगर मैं दोनों तरफ माइनस 2q कर दूं तो क्या होगा, तो यहां बनेगा p माइनस क्यू एंड उस तरफ आएगा माइनस 2q मॉड p प्लस क्यू, मॉड p प्लस क्यू। सिंपल। अब करने वाला हूं इस इक्वेशन का क्यूब ऑन दोनों साइड, जो कि एग्जैक्टली सेम चीज मैंने अभी आपको बताई थी। सो p माइनस क्यू होल क्यूब इज जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 8q क्यूब अंडर मॉड ऑफ p प्लस क्यू। मतलब कि ये जो नंबर होने वाला है दिस शुड गिव मी रिमाइंडर 0 जब मैं उसको p प्लस क्यू से डिवाइड कर रहा हूं, समझे आप। क्योंकि ये जो नंबर है ये मुझे रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो यहां पे ये नंबर भी तो रिमाइंडर 0 देना चाहिए ना मुझे। तो ये मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम हियर आई कैन से दैट जो माइनस 8q क्यूब है दैट शुड गिव मी रिमाइंडर 0 जब मैं उसको p प्लस क्यू से डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा p प्लस क्यू है वो मेरे 8 को भी डिवाइड कर रहा होगा, 8q क्यूब को, राइट। ऐसी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बट यहाँ पे अगर मैं q को रिमूव करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जो p प्लस क्यू होने वाला दैट इज गोइंग टू डिवाइड माई नंबर माइनस 8। तो यहाँ से मेरे पास p प्लस क्यू की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, p प्लस क्यू की मेरे पास पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, ऑल प्राइम्स p एंड q। मुझे पॉजिटिव प्राइम्स के बारे में बात कर रहा हूँ और p और q मेरे प्राइम्स होनी चाहिए। तो जो p और q है मेरे 8 को डिवाइड करने वाला है। तो p प्लस क्यू की वैल्यूज होने वाली हैं या तो 1 या तो 2 या तो 4 या तो 8। अगर मेरे p और q दोनों प्राइम है तो दोनों की दोनों मेरे 2 से बड़े होने चाहिए, 2 या फिर 2 से बड़े, एंड हाँ 2 या फिर 2 से बड़े होने चाहिए। तो वहां पे मेरी p प्लस क्यू की दो ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो 4 या तो 8। तो अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी देखूं तो पहला होगा p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 2, बट ये तो इस साइड 0 हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है 4, तो दिस इज नॉट करेक्ट। अब मैं सेकंड सॉल्यूशन देखता हूं जो कि मुझे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8 से मिलने वाला है। मुझे किससे मिलने वाला है, दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8 से। तो अगर p की वैल्यू 2 है तो q की वैल्यू 6 होने वाली है, नॉट सॉल्यूशन। 3 एंड 5 कैन बी अ सॉल्यूशन। तो यही दो सॉल्यूशन यहाँ से आएंगे। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन देखूं, मेरी इक्वेशन क्या आती है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू होल क्यूब। तो p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से 8 आ रही है और इधर से कितनी आ रही है, माइनस 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, तो मेरी p की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5 और q की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाला है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एंड दैट इज गोइंग टू बी p की वैल्यू क्या आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी 5 एंड q की वैल्यू आने वाली है 3। तो p माइनस क्यू हो जाएगा 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। इस तरीके से ओके हमने यहाँ पे बाकी सॉल्यूशंस को किस तरीके से एलिमिनेट किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी यही सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने वाले थे। सो गाइस इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड होगी वो सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछी हो देन आप, अगर आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछी हो देन यू कैन ऑल्सो फाइंड द यूनिट डिजिट एज वेल। मतलब कि किसी भी नंबर को आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो आप उसकी यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। एंड हमने सारी की सारी प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऐसी देखी थी जिनमें हम रिमाइंडर्स निकाल रहे थे।
Okay, so guys, अगर आपको कोई भी डाउट हो then you can ask in the comment section of this video, and with that being said we'll end the session. And जिस किसी को भी पढ़ना हो for ISN CMI entrance examination, do make sure to purchase the last course at Vedant Olympiad School, जो कि हमारा crash course of December. You can go in the description of this particular video, and अगर आप वहाँ पे जाओगे then you can go and purchase this course out. Okay, and this course is taken by me. So हम बहुत ज़्यादा फन करने वाले इस लेक्चर सीरीज के अंदर. ओके, सो प्लीज मेक श्योर टू परचेज द कोर्स. एंड गाइस, विद दैट बीइंग सेड, we'll end the session here. Thanks guys, thank you for joining. Bye bye, bye all, take care, good night.